echo of his call. Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ our Savior. प्रभु यीशु की अद्भुत नाम से आप सभी को जय मसीह। I hope you are well and doing well. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे में हो। Remember, you are in my prayers. आप सभी लोगों को याद रखिए कि मैं आप सब लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। It is one of the greatest privileges for me to pray with you every day. मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि आप सब लोगों के लिए हर रोज प्रार्थना करना। I remember you in my personal prayers, मैं मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में आप सभी को याद करता हूँ। as well as I count it a great blessing to pray with you directly. मैं आशीष समझता हूँ आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। In this world, we see all the people try to make them to be acceptable by their gods. और हम देखते हैं कि संसार में उन लोग जो लोग की प्रभु में नहीं है वो लोग क्या अपने खुदा को या देवा देवी को कि अपना बनाने के लिए कोशिश करते In हैं। order to convince their gods, and they are walking and doing a lot of rituals. और वो लोग परमेश्वर के द्वारा ग्रह होने के लिए बहुत सारे काम को करते हैं, अच्छे काम को करते हैं। In our country also, there are a lot of churches. People are walking long distance and to worship God there. हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग स्थानों को जा करके उनकी भगवान के द्वारा ग्रह होने के लिए कोशिश करते हैं। Regarding this, I have found out a Bible verse in Acts chapter 10:35. इस संबंधित में बाइबल से एक बात को पाया हो जो कि प्रेरितों का काम उसकी 10 की 35 में लिखा गया है। But in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by God. वरन हर एक जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वो उससे भाता है। It is my desire and prayer that you should be also acceptable by God Jesus Christ. मेरे इच्छा है और प्रार्थना है कि आप सभी लोग भी परमेश्वर के द्वारा ग्रहणीय हो। This is the preaching of Apostle Peter. ये पतरस का एक संदेश था। This is really a deep subject. ये गहरी बातें इस संदर्भ में लिखा गया है। Every nation means every person from any country of the world. हर जाति का अर्थ है कि हर देश में हर प्रकार का लोग। You know, the motto of Echo of His Call Ministry is also reaching the whole world. इको ऑफिस का जो सेवा का एक लक्ष्य है कि हर एक जाति को लोगों को बीच में जा करके सुसमाचार को प्रचार करना। Because Jesus Christ is the international God. हमारा यीशु मसीह जो अंतर्जाति की प्रभु है, He is called the Savior of the world. ये हमारा प्रभु यीशु इस संसार का उद्धार करता है। So you and me should be acceptable by God. इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के द्वारा ग्रहणीय होना चाहिए। For the same purpose only, He was born in Bethlehem and He was killed and He was resurrected. इसी कारण ही यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ था और हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, 3 दिन के बाद जी उठा था। Acceptable by God. परमेश्वर के द्वारा ग्रहणीय होना। Those who are very close to the heart of God. जो परमेश्वर की हृदय के करीब है वो लोग परमेश्वर के द्वारा ग्रहणीय होते हैं। Such people are living in all the countries of the world. इस प्रकार का लोगों कई देशों में वास कर रहे हैं। But the God is only one. He is the Lord and Savior, Jesus Christ and Jesus Christ alone. परंतु वो परमेश्वर वो खुदा एक ही जो कि यीशु मसीह उद्धार करता है। He is the only God who is called as the Savior of the world throughout the world. वो ही एक ही खुदा है जो कि संसार का उद्धार करता बोल के लिखा गया है। He wants to bless all the people of the world. वो चाहता है कि हर एक संसार को आशीष करने के लिए। So those we should be very close to Him. इसीलिए हमें परमेश्वर के नजदीक होना चाहिए। He is the only God to me and all the people of this world. वो ही एक ही मात्र परमेश्वर मेरे लिए और इस संसार के लिए है। So secondly, he who fears Him, it is not the fear based on punishment or any other things. और दूसरी बात ये है कि जो उसको भय मानता है
So acceptable by God is the greatest privilege that God has given to the mankind. परमेश्वर के द्वारा ग्रहणीय होना ये एक अच्छी बात है जो परमेश्वर हमें दिया गया है। Here Bible says, in every nation whoever fears him and works righteousness. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है कि जो जाति कि परमेश्वर को डरता है और धार्मिक काम करता है, We should do righteousness in this world. हमें धार्मिक काम करना चाहिए इस संसार में। We should always try to do righteousness. सर्वदा हमें धार्मिक काम करना चाहिए। Now, when we see in this world, we are not able to see the righteousness in most of the areas of these people. हम इस संसार में देखते हैं कि कई प्रकार पाप से भरे हुए धार्मिकता वहाँ नहीं है। We have to be very careful as God's children. परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें सतर्क रहना चाहिए। We should be very careful. हमें सतर्क होना चाहिए। We should fear the Lord. हमें परमेश्वर को डरना चाहिए। Also, we should do the righteous things only. उसके साथ साथ हमें अच्छा भला काम करना चाहिए। By this way, we can be acceptable by God. इस काम के द्वारा परमेश्वर के द्वारा हम लोग ग्रहणीय हो सकते I हैं। want to pray with you now. मैं इस समय आप लोगों के साथ प्रार्थना करना The चाहता Lord हूँ। will certainly bless you. परमेश्वर निश्चित तौर से आप सभी को आशीष करेंगे। You should commit your life to be acceptable by the Lord Jesus Christ. अपना अपना जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में सौंप दीजिए ताकि उसके द्वारा हम ग्रहणीय हो पाए। By that way, God can make you as a channel of blessing to millions of people in this world. जब अपने आप को परमेश्वर के सामने कि सौंपते, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आशीष करेंगे और आपकी दूसरी लोगों को आशीष का कारण बनाएंगे। So come forward to take a proper decision in convincing the Lord Jesus Christ. इसलिए हमें सही निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। Let me pray with you now. अभी मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। I have explained very quickly what you have put into my heart. जो मेरे हृदय में था उसको मैं संक्षिप्त तौर से बताया हूँ। This message should go to all over the world. ये बातें को संसार की हर एक जगह में फैलाई है। Those who are having fear about you जो लोग आपको डर रहे and whoever do righteous things, और जो लोग धार्मिक काम कर रहे, they will be able to convince you and they will be able to be acceptable by you. ताकि वो लोग आपके द्वारा ग्रहणीय हो पाए। Thank you so much for the wonderful blessing you have bestowed upon us. धन्यवाद करते हैं कि आपकी तमाम आशीषों के लिए। So as your servant, I bless the people, those who are listening this message. मैं आपके दास से होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह जो लोग भी कि ये वचन सुन रहे हैं उन सारे लोगों को आशीषित Lord, I कीजिए। ask you to put your hand upon them and give them courage and good health and long life. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के जीवन के ऊपर आपका आशीष का हाथ रखिए और अनुग्रह दीजिए। अगर कोई बीमारी है उन लोगों को चंगाई दीजिए। Lord, I ask you to bless this day as a beautiful and blessed day for them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये दिन ये सारे लोगों के लिए अच्छा दिन रहे और आशीषित दिन रहे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। God bless you.